Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening to everyone my dear friends. Welcome to our YouTube channel CA रूपक मिगलानी। मेरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रूपक मिगलानी मेरे दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे दोस्तों टैक्सेबल इवेंट क्या होता है मेरे दोस्तों। यस, टैक्सेबल इवेंट। तो मेरे दोस्तों दिस वीडियो हैज बीन टारगेटेड फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स और ऑल दोज पीपल हु हैव अ टैक्सेशन सब्जेक्ट इन देयर एकेडमिक्स, ऑलराइट, बिकॉज वो कभी ना कभी टैक्सेबल इवेंट से रूबरू होंगे या फिर हो चुके होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड डिस्कस अबाउट द सेम। So friends, before moving further, let me tell you that Unacademy have come up with the wonderful batch that is Yodha batch. Yes, my dear friends, this Yodha batch is specifically meant for the students who are appearing for the May 2021 CA examination, and that too who all are appearing for the CA intermediate and CA final examination. Yes, my dear friends, this batch has started from 14th December 2020, and this batch is being conducted by the India's top-notch educators from all over India in the Unacademy platform. Yes, my dear friends. And my dear friends, this batch, Yodha batch, will have a comprehensive course coverage of the CA intermediate and CA final examination through live classes at the Unacademy platform. Yes, my dear friends. So what are you waiting for? If you have not subscribed till now, you can subscribe to the Plus platform. You can have a Plus subscription, my dear friends. And to avail an amazing discounts, you can apply to the given below coupon code Rupak Miglani 323. Alright guys, so as you can see it in the slide, here it has been written taxable event. Alright, my dear friends, taxable event is an event on occurrence of which the liability to pay tax arises. ठीक है, जिसके होने से भैया liability to pay tax arise हो जाती है। या फिर हम इसे एक और चीज बोले तो चार्ज गेट्स क्रिएटेड, मतलब बंदे के ऊपर बर्डन आ गया कि भैया अब तो तुम्हें टैक्स पे करना ही होगा। कब करेंगे दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट टैक्सेबल इवेंट अराइज हो गया मतलब लायबिलिटी ऑब्लिगेशन दायित्व अराइज वो हो गया मेरे वीडू। ठीक है, लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज एंड चार्ज गेट्स क्रिएटेड। ऑलराइट, सो दिस इज टैक्सेबल event. Alright, see what has been written here. A taxable event is any event, any matlab it could be sale, it could be any kind of a transfer, alright, transfer or occurrence of which that result in a tax liability, जिसके होने से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों टैक्सेबल इवेंट दिया कहाँ होगा, ये कानून में दिया होगा। ठीक है, हर टैक्सेशन एक्ट टैक्सेबल इवेंट के साथ आता है, और हर एक टैक्सेशन एक्ट में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है मेरे दोस्तों। हम आगे देखेंगे जीएसटी में, इनकम टैक्स एक्ट में बने रहे। तो देखिए, all investors or parties that pay tax experiences taxable event। हाँ मेरे दोस्तों, ये बेचारों ने जब कभी भी टैक्स पे किया होगा तो इन्हें टैक्सेबल इवेंट तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। ये देखिए, ऑलराइट। So my dear friends, as you can see it in the slide, that every taxation act comes up with a taxable event, whether it is an income tax act, whether it is a GST act. ठीक है, my dear friends, as far as income tax act is concerned, there are 5 different heads of income. ठीक है, हर different heads के हिसाब से there are different taxable event, there are different charging section which decides the liability to pay tax. All right, like if I talk about let's see what are those 5 heads. If I talk about first one, the salary. ठीक है, section 16 is the charging section which describes about the chargeability of tax. All right, if we talk about the house property, section 22 of the income tax act describes about the chargeability of that particular house property head of income. All right, if I talk about PGBP मेरे दोस्तों, मतलब profit and gains from business and profession, है ना मेरे दोस्तों, 28. So 28 is the section number 28 which describe about its chargeability. All right, now thereafter my dear friends, fourth, capital gain.
कैपिटल गेन में 45, सेक्शन 45 डिस्क्राइब्स अबाउट द चार्जेबिलिटी। ऐसे ही मेरे दोस्तों आखिरी में बचा अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में section 56 describes about the chargeability, and this how the taxable event gets defined under the income tax act under the different 5 heads of income. As far as GST is concerned, my dear friends, पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरा हेडफोन फिसल रहा है बीड़ू, कोई बात नहीं। जीएसटी की बात करें मेरे दोस्तों तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है, एक कंप्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट ला दिया गया जिसे बोलते हैं सप्लाई। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, this you're going to study under the section 7 of the CGST Act. All right guys, yeah, चलो let me give you some examples. हाँ मेरे दोस्तों, हमारी जो कोर एडवांटेज है हमारी सीरीज की उसमें एग्जाम्पल ही तो मेन होते हैं मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सेबल इवेंट। ऑलराइट, से फॉर दिस इज राजू माय डियर फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है आप लोग को? राजू एंड कैटरीना। ओहो, कैटरीना। ऑलराइट, राजू होल्ड्स द शेयर्स इन कैटरीना लिमिटेड। मेरे दोस्तों कैटरीना लिमिटेड में राजू के शेयर्स है, ठीक है। अब राजू के शेयर से कैटरीना लिमिटेड में राजू को कैटरीना ने डिविडेंड दिया। मेरे दोस्तों ये जो डिविडेंड दिया ये क्या हो गया? ये बन गया टैक्सेबल इवेंट। ये बन गया टैक्सेबल इवेंट। ये एक एग्जांपल हुआ टैक्सेबल इवेंट का। वन मोर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स। यस, राजू हैज अ प्रॉपर्टी। सपोज राजू हैज अ प्रॉपर्टी, दिस इज वो राजू हमारे पास वापस आ गया। अच्छा लग रहा है ये। राजू के पास एक प्रॉपर्टी राजू ने परचेज किया था 1 लाख रुपए में मेरे दोस्तों, ठीक है। आज इसकी राजू की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है सपोज 3 लाख। तो ये क्या टैक्सेबल इवेंट हुआ? ये टैक्सेबल इवेंट हुआ? नहीं मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा था, ये टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ। लेकिन मान के चलिए कि ये जो 3 लाख रुपए की इसकी मार्केट वैल्यू हो गई, अब इसने ये चीज रमेश को सेल कर दिया। तो सेल जो किया ना, इसे बोलेंगे एक इवेंट। और इवेंट क्या है? ये टैक्सेबल इवेंट है, क्योंकि यहां पे लायबिलिटी टू पे टैक्स वुड अराइज। कौन देगा? किसके ऊपर दायित्व आ रहा है? किसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है? राजू मेरे दोस्तों जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, रॉबर्ट, है ना? Yes, my dear friends. So this is another example of a taxable event. Now let me take you specifically to the GST Act. What under GST is a taxable event? Okay, GST में क्या taxable event है मेरे दोस्तों? ये देखिए, taxable event under GST. My dear friends, as I've told you that GST में एक comprehensive event जिसका नाम है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई जो कि सेक्शन 7 में आपको बताया जाएगा, सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें सप्लाई के बारे में दिया जाएगा। और सप्लाई जो है मेरे दोस्तों, सप्लाई थोड़ा वाई ऐसा बन गया है, डोंट माइंड मेरे दोस्तों, ये है सप्लाई। सप्लाई को ही टैक्सेबल इवेंट माना गया है। और अगर हम इसकी चर्चा बहुत डिटेल में करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया सप्लाई इंक्लूड्स, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको ध्यान है मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है। सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है और इसमें लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स एन नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, रेंट, लीज and etc, transfer of business assets and what not. All right, this is all included in the definition of supply, which is a taxable event, जिसके हो जाने से, जिसके आ जाने से मेरे दोस्तों liability to pay tax आ जाएगी, है कि नहीं? चलिए क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। The taxable event under the GST shall be the supply of goods or services made for a consideration in the course of a furtherance of business. तो मेरे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है सप्लाई की डेफिनेशन। टैक्सेबल इवेंट जिसको सप्लाई बोल रहे हैं कि भाई साहब पहले तो कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। मेरे दोस्तों कहने का मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो सप्लाई किया जाना चाहिए, बिजनेस के व्यवसाय के लिए हो जाना चाहिए, तो ही वो सप्लाई है, तो ही वो टैक्सेबल इवेंट कहलाएगा। और कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो एक सप्लाई और टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा। कहने का मतलब वहां पे लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों इस चर्चा को डिटेल में करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शेड्यूल 1 होता है ऑफ द CGST में शेड्यूल 1 दिया रहता है जो कि बताता है कि भैया ऐसी भी सारी एक्टिविटीज है जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी हो, विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन है, ठीक है।
नो कंसिडरेशन भी है मेरे दोस्तों, तो भी वो क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। हाँ, यस। और अगर और डिटेल में चर्चा करने जाए तो मेरे दोस्तों बिजनेस के बारे में लिखा है ना, ये बिजनेस, ये एक वर्ड के ऊपर ही जीएसटी कानून में सेक्शन 2 में बिजनेस के बारे में लिख दिया गया है बहुत सारा कुछ, है ना। यस, तो बिजनेस की डेफिनेशन भी बहुत कुछ कहती है मेरे दोस्तों। तो ये होता है सप्लाई अंडर जीएसटी। द टैक्सेबल इवेंट अंडर द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ such as manufacture, sale or provision of services shall stand subsumed in the taxable event known as supply। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि पुराने समय में जब वहां दूर गराज गांव में कोई रहता था, जब एक्साइज लगा होता था मेरे दोस्तों, एक्साइज में मैन्युफैक्चर को क्या बोलते थे, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, वैट में किसको बोलते थे टैक्सेबल इवेंट दोस्तों, सेल को। ऑल राइट। और सर्विस टैक्स में मेरे दोस्तों किसको टैक्सेबल इवेंट बोलते थे, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को। ऑल राइट। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, छोटे छोटे, ये तीनों जो टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे पुराने टैक्सेशन रिजाइम में, अब ये तीनों सबसम हो गए जीएसटी में और एक कंप्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट ला दिया गया है। कंप्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट ला दिया गया है जिसे बोला जाता है सप्लाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्तों ये थी बात आज। So my dear friends, this was the discussion about the taxable event in our today's video. I hope you liked the video and enjoyed the same as well. So friends, till the time we come up with another video, till then take care, goodbye मेरे दोस्तों, and जय हिंद। बहुत खुश रहिए, बहुत सुखी रहिए मेरे दोस्तों। Bye bye, take care.